Good afternoon, everybody. I'm Sayukta from Beautiful Spotless Skin Team. I'm sure all of you must be keeping good health. You must have come across people, especially women, with brown color patches on their face. They seem like freckle, like spots forming large, flat patches. This is nothing but melasma. Melasma is a very common chronic skin condition in India. According to a study conducted across 4 Indian cities, it revealed that more than 80% of the population present skin color heterogeneity on the face, irrespective of age and gender. This heterogeneity mainly results from hyperpigmented spots and melasma. Indian skin tone is more prone to pigmentary disorders. It occurs mainly in women, 90%, and about 10% of males of all ethnic and racial groups. Around 20 to 30% of 40 to 65 years old women present a facial melasma. Melasma and hyperpigmentation generally ignored as signs of aging and often misunderstood skin condition. Melasma sufferers have been misinformed about aspects of this very common hyperpigmentation issue. This can lead to frustrating setback in treatment. And to avoid all these hassles and to keep you informed, today we are here to know more about the management of melasma from an expert. So let's connect today with our skin expert, Dr. Archana Lokhande, a consultant dermatologist and cosmetologist, live from Patna to make us aware on management of melasma. Dr. Archana has pursued her post-graduation from BJMC Ahmedabad. She has fellowship in dermatosurgery and aesthetics. Doctor has an expertise in the field of skin, hair, nails, leprosy, cosmetology, and so on. With her expertise today, Doctor will enlighten us more on melasma and its management. A very warm welcome to you, Dr. Archana. Very good afternoon. Thank you, Sayukta. Dr. Archana, it's a pleasure to have you with us. And today we are going to talk about a very important and a very, as I said, very common chronic skin condition in India, which is melasma. So first of all, doctor, we would like to understand what is melasma? Melasma is a skin condition in which we see hyperpigmentation on the face. This can occur on the other body parts also, but it is basically on the melasma. It is seen on both the cheeks, nose, forehead, this mandible area, sometimes on the neck or sometimes on the forearm. But the face variant, which is more common, that is on the cheeks along with nose. And there are multiple factors which we'll be discussing ahead. Right. So as you said, it's a very common skin condition that we see in India. melasma क्या है डॉक्टर, ये तो आपने बता दिया, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये क्यों होता है, इस पर भी बात करनी जरूरी है. So what are the main causes of melasma? क्यों melasma होता है? जैसे आपने पहले डिस्कस किया कि 30s के बाद वाले एज में या कभी कभी उसके पहले भी फीमेल्स में ये कॉमनली पाया जाता है. हम जिस एथनिसिटी में बिलोंग करते हैं, हमारी जो स्किन टाइप है, स्किन टाइप 3 है, स्किन टाइप 4, विच इज मोर कॉमन इन इंडिया, इस स्किन टाइप में सन एक्सपोजर की वजह से, हार्मोन्स की वजह से मेलाज्मा बहुत कॉमनली पाया जाता है. मेल्स 20% मेल में भी ये पाया जाता है, और ऑन एन एवरेज जो फीमेल्स है चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप वाली, उनको प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के बाद ये कॉमनली पाया जाता है. बहुत सारी कंडीशन इसके साथ हमें मिमिक करती है, तो इसको डिफरेंशिएट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. बट कुछ फैक्टर्स है, जैसे सन एक्सपोजर है, हार्मोनल थिंग्स है, जो प्रेगनेंसी की वजह से हमारे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसके वजह से कभी कभी हम ओसी पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, तो उसमें भी जो हार्मोन की मात्रा रहती है उसकी वजह से ये कंडीशन पाई जाती है. एंड लास्टली, जैसे ओल्ड एज या 40s या 50s के बाद जब हमारा मेनोपॉज का समय आता है, तब हार्मोनल थेरेपीज कभी कभी दी जाती है, तो उसके वजह से भी एग्रीवेट होने की कोशिश होती है. बाकी मेल्स में एक्सक्लूसिवली सन एक्सपोजर की वजह से ये कंडीशन पाई जाती है. राइट. सो ओवरऑल हम कह सकते हैं सन एक्सपोजर इज द मेन कल्प्रिट. उसके अलावा फीमेल्स में खास तौर पर जो हार्मोनल इम्बैलेंस है और there are other elements contributing to it, जिसकी वजह से melasma होता है. Melasma is a word, Dr. Archana, and there is another word which seems to be very similar, and that is hyperpigmentation. तो ये hyperpigmentation and melasma ये same है, अलग है, क्या है, प्लीज बताइए. वर्ड संयुक्ता क्या है, वर्ड हाइपर और पिगमेंटेशन इटसेल्फ बता देता है कि हाइपर जो पिगमेंटेशन है वो ज्यादा है, इसलिए हम इसको
हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। और मेलाज्मा इस कैटेगरी की एक डिसऑर्डर है जो फेस में ज्यादा कॉमनली पाई जाती है। तो इट इज अ सब ग्रुप ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन इज अ ब्रॉड कैटेगरी जिसमें बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी, जैसे आपने पहले बताया, फ्रेकल्स है, या कुछ लाइट एरप्शंस है, या कुछ स्किन की बीमारियां है, लाइकेन प्लानस है, या अकैंथोसिस निग्रिकन्स है, फेशियल मेलानोसिस है, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, राइल्स मेलान, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जो हाइपोपिगमेंटेशन कैटेगरी में आती है, और मेलाज्मा उसमें मोस्ट कॉमनली पाई जाने वाली बीमारियां हैं। Okay, so all kinds of melasma comes under hyperpigmentation. That Yes. in a very broader sense we can say. Okay, as we could understand with whatever you have told us, Dr. Archana, we could make out that melasma is what is like symptomatic. It's the symptoms, right? चेहरे पे फ्रेकल्स है, उसे हम एक साइन या सिम्टम्स के तौर पे ले सकते हैं, वो मलाजमा हो सकता है, या हो सकता है कुछ और भी हो, हाइपरपिगमेंटेशन उसे हम ब्रॉडली कह सकते हैं। लेकिन फिर भी एक लेमन के तौर पे समझने के लिए, ताकि जो हमारे व्यूअर्स है वो भी समझ सके कि अगर उनके स्किन पे कुछ एबनॉर्मलिटी हो रही है तो कहीं ये मलाजमा तो नहीं। हम जानना चाहेंगे कि मलाजमा कैसा दिखता है, उसके सिम्टम्स, साइंस, जो भी हम कह सके वो क्या है। मेलाज्मा जो है जनरली हम इसको छाइयां बोलते हैं। हर लैंग्वेज में अलग अलग बोला जाता है, पर हिंदी में हम इसे झाइयां बोलते हैं। ये झाइयां जो है औरतों को ज्यादा अच्छे से पता चल जाता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के साथ जो चेंजेस उनके साथ होते हैं उसमें ये जो पर्टिकुलर एरिया है चिन का और नोज का, नोज ब्रिज, ऐसे बटरफ्लाई शेप में हमें पिगमेंटेशन दिखता है एक, और ऐसे दो जैसे मिरर इमेजेस है दोनों आगे, वैसे मेलाज्मा दिखता है। कभी कभी ये लोअर पार्ट में भी होता है, कभी कभी फोरहेड्स में होता है। और ये बेहतर होगा जब भी आपको डाउट हो, आप जो सर्टिफाइड एक्सपर्ट है फील्ड में, डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनसे सलाह ले ले, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां कभी कभी मिमिक करती है। कभी कभी हम रॉन्ग ओटीसी प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो जो आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है और ज्यादा गहरी हो जाती है। तो इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू हैव सम कंसर्न, गेट इट वेरीफाइड फ्रॉम एन एक्सपर्ट। राइट, आई थिंक यू मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट। होता क्या है, जब भी किसी भी तरह की हमें परेशानी होती है, खासकर स्किन पर अगर कुछ हो, मलाजमा की ही अगर हम बात करें, अगर हमें पैचेस नजर आ रहे हैं या पिगमेंटरी कुछ डिसऑर्डर नजर आ रहे हैं, तो आमतौर पर या तो हम ओवर द काउंटर मेडिकेशन के लिए जाते हैं, हम जल्दी से केमिस्ट के पास चले जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि देखो हमें छाइयां हो रही है, क्या करें, एंड वी स्टार्ट doing what the chemist have provided us. अदरवाइज हम होम रेमेडीज की तरफ भी पहुंच जाते हैं। बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो ये दावा करते हैं, एक मार्केट गिमिक तो है ही, कि वो मलाजमा या पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। तो हम ये सब करते हैं, और जब हमारी कंडीशन ठीक नहीं होती या बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तब हमें एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट की याद आती है। सो दैट्स द आयरनी। लेकिन ये है, तो ऐसे में ओवर द काउंटर मेडिकेशन या फ्रेंड या फैमिली से पूछ के कोई ऑइंटमेंट अप्लाई करना, होम रेमेडीज अप्लाई करना, ये कितना खतरनाक हो सकता है डॉक्टर? देखिए, कोई भी चीज जो है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, इनफैक्ट पता भी है, वो आपके स्किन को सूट होगी या नहीं होगी, आपके डिसीज कंडीशन पे आप जब लगाएंगे तो आपके स्किन का रिस्पॉन्स क्या होगा, यू नेवर नो दैट। देयर आर पीपल हु यूज समथिंग ओवर द काउंटर, जैसे बहुत सारे ओटीसी प्रोडक्ट है, स्टीरॉइड बेस्ड प्रोडक्ट है, बहुत सारे मार्केट में भी जिनकी एड्स आती है, टीवी पे एड आती है, हमें बहुत अपीलिंग लगता है कि हमने यूज करना चाहिए जिससे कम हो जाएगा। People tend to use that again and again for a longer duration of time, बट उसके साथ जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने ड्यूरेशन के लिए, कितने अमाउंट में लगाना चाहिए, या वो आपके कंडीशन के लिए सूटेबल है या नहीं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बहुत बार ऐसा होता है, इसके साइड इफेक्ट ही ज्यादा पाए जाते हैं, पिगमेंटेशन की बीमारियां और ज्यादा गहरी हो जाती है, स्किन के लेयर्स होते हैं, उसके ऊपर जो पिगमेंटेशन होता है धीरे धीरे वो अंदर वाले लेयर्स में चला जाता है, देन उसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी हम जो होम रेमेडीज जैसे लोग चूना काथा या समथिंग लाइक लेमन गार्लिक ऐसे, या हल्दी, या एनी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, हर किसी की स्किन डिफरेंट होती है। कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, कुछ लोगों की स्किन ड्राई होती है, कुछ लोगों की स्किन फोटो सेंसिटिव होती है, धूप की उनको एलर्जी रहती है। इसके साथ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट ही ज्यादा पाए जाते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर आप एक कस्टमाइज सोल्यूशन ले लीजिए विच इज प्रिफरेबल टू योर स्किन टाइप।
Right. And what happens, most of the time we end up wasting a lot of energy, time, money, and we are also, making our skin at risk, etc. And in सबको हम One बचा more सकते हैं. one more point, in this Yes. journey when we go somewhere wrong, अगर लोग ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो जो irreparable damage हो जाता है उसको reverse करना is very difficult, Right. and the time which is lapsed in that and the damage which is occurred, it has a lot of psychological impact on the patients, I on their completely quality agree of with you. Yes. तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं व्यूअर्स कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ एब्नॉर्मलिटी स्किन में नजर आ रही है, पैचेस है, फ्रेकल्स हैं, पिगमेंटेशन है, तो प्लीज सबसे पहले एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए. जितना वक्त आप केमिस्ट से बात करने में या इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि आजकल बहुत है, उनके वीडियोस देखने में जाया करेंगे, उससे कम वक्त में आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि आपके आसपास कौन एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनके पास जाइए. तो हो सकता है कि बहुत आसानी से आपका ट्रीटमेंट हो सके. ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर मेलास्मा? हु आर एट मोर रिस्क फॉर मेलास्मा? ऐसा बोला जाएगा कि जो रिलेटिव्स होते हैं या हमारे मदर में है, हमारे सिस्टर में है, तो देयर इज अ रिस्क. इट इज नॉट अ हेरिडिटरी डिसीज जो जैसे आनुवंशिक तौर पे एक से दूसरे में पाया जाता है, बट हाँ, अगर देयर आर रिस्क फैक्टर्स इन द फैमिली, देयर आर चांसेस दैट यू आर गोइंग टू गेट इट सूनर और लेटर. Okay, you might get it, you might not get it, but it depends on how is your lifestyle. Lifestyle बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है. आपका सन एक्सपोजर कैसा है, आप कितना आउटडोर वर्क करते हैं. मेल में जो मेलास्मा होता है वो बहुत ज्यादा डार्क जनरली पाया जाता है क्योंकि उनका आउटसाइड एक्सपोजर जो है वो बहुत ज्यादा है. फीमेल्स में भी एक बार आपको हो जाती है बीमारी तो सन एक्सपोजर से कोई भी पिगमेंटेशन प्रॉब्लम ज्यादा गहरी हो जाती है. तो जैसे बहुत बार औरतें हमें बताती है हम तो घर के बाहर ही नहीं निकलते, बट अभी सर्दियों का मौसम है, नॉर्थ इंडिया में ठंड होती है, लोग धूप सेकते हैं, तो वो दैट इज अ काइंड ऑफ सन एक्सपोजर. अगर हम बाहर कपड़े सुखाने जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, बच्चों को लाने जा रहे हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ सन एक्सपोजर. Okay, so in the months of monsoon also there is sun UV rays which are responsible. Nowadays जो theories है वो बता रही है कि visible light है, infrared light है, इसका भी असर होता है pigmentation disorders पे. तो these are two important factors. Beside that, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हार्मोनल इश्यूज है, तो प्रेगनेंसी है, मल्टीपल एक प्रेगनेंसी में हुआ है तो अगले प्रेगनेंसी में भी वो गहरा होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं. सेकेंडली, अगर आप ओसी पिल्स ले रहे हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए या हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं मेनोपॉजल इश्यूज के लिए, तो उससे है. और कोई भी तरीके का सन एक्सपोजर जो है वो ऑब्वियसली ये बात बढ़ाने वाला है. ओके. हमारी एक व्यूअर है इशिता झा, वो पूछ रही है कैन मेलास्मा बी प्रिवेंटेड? सी मेडिसिन में बहुत सारी चीजें हैं, वो प्रिवेंशन करना बहुत डिफिकल्ट है और ट्रीट करना भी डिफिकल्ट है. आपकी जो जेनेटिक टेंडेंसी है दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड. राइट. ओके, फर्स्टली दैट व्हाट कैन बी प्रिवेंटेड इज द सन एक्सपोजर. सो जो सन केयर है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट कुड बी प्रिवेंटेड. एक्सक्यूज मी. एग्जैक्टली. तो ये बहुत जरूरी है कि हम जानें कि मेलास्मा क्या है, क्यों होता है, और अगर हमें हो रहा है तो हम तुरंत किसी एक्सपर्ट को दिखाएं, और इस केस में वो एक्सपर्ट है एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट. तो अगर ये प्रॉब्लम है तो प्लीज अपने आसपास जो भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है उनसे जाइए, उनसे संपर्क कीजिए. अगर आप पटना में रहते हैं या पटना जाने वाले हैं तो डॉक्टर अर्चना लोखंडे तो है ही आपकी मदद के लिए वहां पर. So, doctor, we would also like to understand, how do you as a doctor diagnose melasma? Just by physical examination, or you do any test as well? See, most of the cases, melasma is a clinical condition which is easily diagnosed on the clinical examination. We have a hand lens or a dermoscope. is a magnified lens होती है जिसकी वजह से हमें मैग्निफिकेशन से पता चल जाता है कि लेवल कितनी डीप है, या कोई और अगर क्लिनिकली सिमिलर कंडीशन है उसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है. बाकी वो छोड़ के जिन केसेस में हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लगती है या पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करते तो स्किन बायोप्सी होती है जब वो की जाती है, बट मोस्टली डर्मोस्कोपी क्लिनिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है. ओके. अब हम थोड़ा इसके ट्रीटमेंट पर भी बात करना चाहेंगे कि मेलास्मा के ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं डॉक्टर?
कोई भी ट्रीटमेंट कोई भी डिसीज के लिए होती है, तब हम उसके जनरल मेजर्स होते हैं और स्पेसिफिक मेजर्स होते हैं, या टॉपिकल ट्रीटमेंट्स है या स्पेशल थेरेपीज है। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो अभी तक मैंने बताया है कि सन एक्सपोजर प्रिवेंट करना। तो सन एक्सपोजर कैसे प्रिवेंट करना है, तो सनस्क्रीन लगाना है। कभी भी आप बाहर जाएंगे घर के, उसके 15 to 20 मिनट्स पहले सनस्क्रीन लगाना है। जितना भी एक्सपोज पार्ट है उस पर पूरी तरीके से अच्छे से सनस्क्रीन लगाना है। और ये सनस्क्रीन जो है हर 2 या 3 घंटे में आप रिपीट कर सकते हैं। आप नहीं भी जा रहे हैं बाहर तो भी आपने सनस्क्रीन लगाना चाहिए। यू कैन ऑलवेज यूज अम्ब्रेला, यू नो अम्ब्रेला प्रोवाइड्स अ बेस्ट काइंड ऑफ सन प्रोटेक्शन along with sunscreen and covering your face. So these are 3 important factors. When you're outdoors or picnics, you use hat or cap. Okay, so these are the things we see that generally sun exposure जो है ऐसे prevent किया जा सकता है। Secondly, अगर बोला जाए, अगर आप हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव या ऐसे कोई ट्रिगरिंग फैक्टर्स है या कोई मेडिकेशंस है जो आपको फोटो सेंसिटिव बना रहे हैं, तो फोटो सेंसिटिव इन द सेंस जो सनलाइट है उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और आपकी बीमारी बढ़ रही है, तो आपने उनको अवॉइड करना चाहिए डॉक्टर के सलाह से। देन तो अभी हम टॉपिकल ट्रीटमेंट्स है, बहुत सारे फॉर्मुलेशंस है जो आपके स्किन के टाइप के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उसके साथ आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत है या कौन से टाइप में इसको लगाना चाहिए, डे टाइम के लिए सूटेबल है या नाइट टाइम के लिए सूटेबल है। और बहुत सारे सीरम्स बेस्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो आपकी स्किन की जो नीड है। 2 चीजें है संयुक्ता मैं बताना चाहूंगी। एक ट्रीटिंग फिजिशियंस एस्पेक्ट होता है, एक पेशेंट्स एस्पेक्ट होता है। व्हाट मे बी बॉदरिंग टू द मी एज अ फिजिशियन could not be bothering point for the patient, you know, that most of the time, क्योंकि उनकी ब्यूटी की डेफिनेशन या उन्हें कैसा दिखना है, उनके वो जहां से बिलोंग करते हैं वहां ब्यूटी की डेफिनेशन क्या है, और एज अ एक्सपर्ट मेरी रिक्वायरमेंट या मेरी एनालिसिस क्या है, वो डिफरेंट हो सकती है। तो we generally try to explain patient कि these are treatment option available for you, so what is in your budget, what is suitable to your skin and what you can continue for a long time, so उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट मोडालिटीज डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया डीपिगमेंटिंग ट्रीटमेंट। बिसाइड दैट बहुत सारी प्रोसीजर्स है, जैसे केमिकल पीलिंग है, तो उसमें हम जो भी चीजें होते हैं थोड़ी से हायर कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। ये सिटिंग्स में किया जाता है, जैसे once in a month, once in 2 months, like that, and there are lasers also. So there are different basket of therapies, but all these things, the bottom line is the therapy is always customized and personalized. Okay. और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप जितनी जल्दी डॉक्टर से संपर्क करेंगे उतना आसान होगा ट्रीटमेंट लेना, और जल्दी ही आपकी जो भी मुलाजमा है या पिगमेंटेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट करना। तो इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन होम रेमेडीज और ओवर द काउंटर मेडिकेशन एक्सेट्रा। प्लीज गो एंड कंसल्ट अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्रस्ट योर डॉक्टर, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। कुछ और जी One thing I would like to just highlight, over the years, हमारे OTC जो इंडिया में बहुत सारी जनरल गाइडलाइंस बहुत ज्यादा stubborn नहीं है, तो OTC में बहुत सारी चीजें मिल जाती है जो स्टीरॉइड्स बेस्ड होती है या जिसमें कुछ ऐसे फॉर्मुलेशंस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं और लोग उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम वर्सनिंग हो जाती है और साइड इफेक्ट भी बढ़ जाते हैं, जैसे चेहरा लाल होना, चेहरे की स्किन पतली होना, वहां वेन्स दिखने लगना, नसें दिखने लगना, बाल आना, and then the skin becomes so sensitive they are not able to apply anything. So ये सारे जो प्रॉब्लम्स है इसको अगर आपको फेस नहीं करना है तो कोई भी चीज, देखिए हम छोटी सी कपड़ा अगर खरीदते हैं तो हम उसको बार्गेन करते हैं, 10 बार परखते हैं, बट अगर हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं या कोई चीज लगा रहे हैं तो वी आर नॉट बॉदरिंग एट ऑल कि ये मेरे लिए बनी है या नहीं, या मैंने इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। राइट। एंड द आयरनी इज कि कई बार जब लोगों से पूछो, खासकर जो सफर कर रहे हैं मुलाजमा या हाइपरपिगमेंटरी इश्यूज से, कि डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे हैं, तो वो कह देते हैं कि डॉक्टर स्टेरॉइड्स बोल देंगे या दे देंगे, प्रिस्क्राइब कर देंगे, एंड अल्टीमेटली वो खुद क्या कर रहे हैं, वो ओवर द काउंटर जाके उनको पता भी नहीं है। They don't know about it. That's the only thing.
एग्जैक्टली तो अगर डॉक्टर जो भी आपको दे रहे हैं ये भी समझने की जरूरत है कि वो डॉक्टर अपनी रेपुटेशन स्टेक पे लगा के आपको ट्रीट कर रहे हैं, तो इसलिए वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे I आपकी स्किन की often say to कंडीशन। people that आपके लिए दवा होगी, बट जब मैं ये अपने पेपर पे लिखती हूँ, I owe the responsibility of its effect along with side effects, you know. That explains it all. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए और बिना वक्त जाया किए जाए, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत और भी सवाल मेरे पास आ रहे हैं, इन सवालों के भी मैं आपसे जवाब ले लेती हूँ जो हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं। इशिता झा का एक और सवाल है, व्हाट विटामिन्स कैन आई टेक टू हेल्प विद मेलास्मा? See, there are not just vitamins, जो अभी की थियरीज ऐसे बोलती है, हमारे शरीर में हमारे मेटाबॉलिक एक्सपोजर के, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के वजह से, या जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं सन एक्सपोजर है, इसके वजह से कुछ ऑक्सीडेंट्स तैयार होते हैं जो ये पिगमेंटेशन ज्यादा बढ़ाने में मदद करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में जो भी चीजें आती है हम उसको ले सकते हैं, बट वो भी मैं बताऊंगी कि आप सलाह लेके ही लीजिए। बाकी आपको एज अ पर्सन आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप जो सीजन में जो फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, उसमें भरपूर मात्रा में जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, आपके लोकली अवेलेबल है, यू जस्ट टेक दैट, यू नो, हैव अ बैलेंस्ड डाइट, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, which gives you vitamins and minerals in ample of amount, and which is sustainable, you know. एग्जैक्टली तो हेल्दी खाइए जो लोकली वहां पे मिल रहा है। अलग अलग कलर्स एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए यही कहा जाता है कि जो भी कलरफुल है, अगर आलू बुखारे का सीजन है, आपके यहाँ आलू बुखारा मिल रहा है तो आलू बुखारे खाइए। पोमग्रेनेट खाना है तो पोमग्रेनेट खाइए, अनार का सीजन है, it is rich in antioxidants. There are dry fruits which are rich in many minerals and oxidants and vitamins and all. जो टमाटर है, टमाटर का छिलका होता है, उसमें भी ऐसे तत्व होते हैं, जैसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, यू नो। एंड दैट रिमाइंड्स मी डॉक्टर, आपने कहा टमाटर का छिलका है या फ्रूट्स हैं, कई लोग होते हैं जो ये विश्वास रखते हैं कि जितना खाइए उससे ज्यादा लगाइए, लगाना भी बहुत जरूरी है चेहरे पे। डॉक्टर्स कई बार या साइंस कई बार इस थियरी को नहीं मानती। आई एम श्योर हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे, बिकॉज आजकल इन्फ्लुएंसर्स का भी बहुत ज्यादा जो है ना, सेलुलर लेवल पे जो चीजें चल रही है उसको आप अल्टर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से खाना पड़ेगा, तब वो ब्लड में जाएगा, तब वो अपना असर दिखाएगा। आप ऊपर कितना भी पोतेंगे या लेपेंगे तो उसके अंदर कितना जाएगा इसकी श्योरिटी नहीं है। Exactly. नंदनी शर्मा हमारे साथ है, पूछ रही है, does chemical peeling help? Yeah, it does help, but it depends what kind of melasma you have, how deeper is the pigmentation, because the choice of the agent depends on that. There are many products which come in the market which claim this as glycolic acid, salicylic acid, niacinamide, and n number of things which are there, and many companies have it. So it is not necessary that it will suffice to your need. Right. Okay. We have Ajit Singh with us asking, what is the gold standard treatment for melasma? Please explain. We have almost discussed that. See, there is one thing I will say, there are guidelines for the treatment, but gold standard depends on the personal, जो patient है उसको जो suit कर रहा है, that is a gold standard, always. Exactly, right. अच्छा, चूंकि हम अलग अलग तरह की पीलिंग्स की बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, आम तौर पे ये देखने में आता है कि एक क्वालिफाइड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है, उनका क्लिनिक है, वहां पे एक्सपर्ट्स हैं जो ट्रीटमेंट्स देते हैं। दूसरा एक सलून या पार्लर बेस्ड ट्रीटमेंट्स जो कि उस तरह से तो साइंटिफिक नहीं होते लेकिन लोगों के बीच बहुत पॉपुलर होते हैं। और आम तौर पे अगर खास तौर पे क्योंकि महिलाओं में ज्यादा मुलाजमा देखने को मिलता है, अगर उन्हें पिगमेंटेशन है तो they'll just go for a anti-pigmentary facial or parlor based treatments, etc. How safe or how good these safety is always an issue. What kind of products are used और वो आपके लिए बने हैं या नहीं, और ये जो चीजें यूज हो रही है वो पर्सन की एक्सपर्टाइज कितनी है उस पे डिपेंड है। सेकेंडली, हम कोई भी जो प्रोसीजर है फर्स्ट डे नहीं करते, वी assess the products which are there in the market, but then also every product is not meant for every patient. When we start with the treatment, there are chances that few patients come back, doctor आपने तो मेरा चेहरा खराब कर दिया,
क्योंकि वो ट्रीटमेंट की जो स्ट्रेंथ है, आइदर उन्होंने ठीक से समझी नहीं है किस तरीके से लगानी है, या उनके स्किन को वो तब सूट नहीं हो रहा है, या उन्होंने पहले ही ऐसी कुछ कुछ ट्रीटमेंटें कराई है जिसके वजह से उनकी स्किन सेंसिटिव हो गई है। तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, यू टेल एवरीथिंग, एवरी ऑल ट्रूथ अबाउट व्हाट एवर यू आर डूइंग ऑन डेली बेसिस। कौन से हर्बल चीजें लगा रहे हैं, आयुर्वेदिक चीजें लगा रहे हैं, होम रेमेडीज लगा रहे हैं, या ओटीसी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं। लोगों को बहुत बड़ा लगता है कि ये तो ट्राइबल सी चीज है, इसको क्यों बताना, इसमें क्या है करके। And then when we start the actual treatment or therapeutic point of treatment, then the skin start reacting to it. So it is very important as a doctor for us to understand their skin first. So what I do generally, I go from, I have, rabbit and tortoise kind of tortoise approach, we'll go with a baby step. So that give me confidence to understand your skin, develop a relationship with the patient, and that boosts my confidence. See, now my patient has tolerated this, so I may step up one step ahead. And there are no shortcuts in the life. That is more important to understand. Skincare is an investment. It is a step by step gradual process. आज हम इतना करेंगे और कंसिस्टेंटली इतनी स्किन केयर करेंगे, तब जाके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट द डिजायर्ड स्किन। And ultimately slow and steady wins the race. तो भले ही वक्त लगे, लेकिन बेबी स्टेप्स जैसा कि आपने कहा वो भी कई बार बहुत कारगर होते हैं। कुछ और मैं व्यूअर्स के सवाल लूं उससे पहले, चूंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि सन एक्सपोजर मेन कल्प्रिट है मिलाजमा में, हार्मोनल इम्बैलेंस और दूसरी चीजें तो है ही। सन एक्सपोजर की जब बात हुई तो आपने कहा कि सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत जरूरी है। जो भी हमारा एक्सपोज्ड एरिया है, बाहर जाने से पहले एम्पल अमाउंट सनस्क्रीन लगाना चाहिए। बट अगेन देयर आर so many myths or theories associated with sunscreen. Like people often say that I get my skin becomes very dull or oily, or I get that white cast, इसीलिए हम सनस्क्रीन नहीं लगाते। I sweat a lot after applying sunscreen. तो ये जो तमाम excuses या complaints हैं सनस्क्रीन को लेकर, इसे आप किस तरह से डील करती हैं? देखिए, मार्केट में बहुत सारे मैं एक बात बताना चाहूंगी, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, अगर आपको कोई पिगमेंटरी डिसऑर्डर नहीं है, तो आप जनरल सनस्क्रीन जो बाहर मिल रहे हैं वो यूज कर सकते हैं। बट उसकी इफिकेसी स्टिल वेरिएबल है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं होते, उसकी इफिकेसी कितनी है वो मेंशन नहीं होती। जो एसपीएफ है वो एक फॉल्सली लोग को भुलाने की कोशिश है, क्योंकि साइंटिफिक उसके बिहाइंड साइंस जो है वो डिफरेंट है। और आपका ऑक्यूपेशनल या वर्क रिलेटेड एक्सपोजर सन से कितना है, आपकी लाइफस्टाइल कितनी है, कैसी है, आपकी स्किन कैसी है, बेसिकली उस हिसाब से हम सनस्क्रीन डिसाइड करते हैं। What I generally do, Sayukta, in my clinic, I have sunscreen basket. So whenever I have a doubt about it, that this patient might not like this kind of sunscreen, it is an investment, skincare. Right. So when you are, and sunscreen, there are, cheaper product to expensive product. There is always a cost factor and efficacy involved in any kind of product which is a patient is buying. So I make them feel that product. Whenever we are going to mall and buying a cosmetic, when we feel it, we get that a boost that this suits to my skin, this looks better on me. So I make them feel, and then they get that confidence, because if they are investing somewhere around 500,000 or 2,000 bucks in some product, and which I want them to use regularly. So I want a confirmation from them that this is made from me and I can go for it. So it's always a good idea again to go and consult your dermatologist regarding your sunscreen, so they can actually prescribe you as per your skin type, your working conditions, your exposure to the sun, etc., etc. So they'll keep all these elements in mind before suggesting a good sunscreen as per your skin type and your work culture. But again, as we see in the last 2.5 years, people are more working from home or not going out much. अगेन, जैसा पहले भी आपने कहा था कि लोग कहते हैं मैं तो बाहर जा ही नहीं रहा हूँ, या बाहर तो अभी विंटर्स है, अभी तो धूप ही नहीं है, या अभी तो बारिश हो रही है, अभी तो धूप ही नहीं है, तो क्यों लगाना जरूरी है? और रीएप्लीकेशन की जो बात कही जाती है सनस्क्रीन में कि एक बार नहीं, आपको दिन में 3 बार लगाना है, तो रीएप्लीकेशन क्यों इतना जरूरी है? जैसे आपने बोला, कोविड के दौरान लोग बहुत सारा ऑनलाइन वर्क कर रहे थे, so there is a lot of visible light exposure, infrared light exposure, the light which is emitting from the devices.
which is also causing all this problem. So sun exposure ke liye, so all this light exposure basically is causing the pigmentation deeper. So uske liye sunscreen lagana zaruri hai. There are different kind of sunscreen which comes like infrared spectrum hai, ya visible light protection hai, ya anti pollution hai. There are many names which a market has given it, but yeah, they have those kind of ingredients in the pharmaceutical sunscreens which provide or which claim that efficacy ki ye is tarike ke exposure ke lifestyle ke liye zyada theek hai. और अगर आपने कोई प्रोसीजर की है या आपकी स्किन सेंसिटिव है तो क्या आपने जो स्किन केयर रूटीन करना चाहिए, क्योंकि फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन ये बेसिक पिलर्स है इसके। और अगर आप एक बात पूछे तो ये तीनों में मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर तीनों ही इम्पोर्टेंट है, मगर आपको शुरुआत अगर करनी है तो सनस्क्रीन इज द प्रोडक्ट। When you start aging, you know, aging is a continuous process and photo damage is the most common cause. हमारा चेहरा है, उसी से हमारी आइडेंटिटी बनती है या उसी से हम खुद को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो it is who don't want to look good, you know, age has no limit. तो वो स्किन जो है उसको मेंटेन रखने के लिए यू ऑलवेज शुड वेयर अ सनस्क्रीन एंड वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन्स आते हैं तो उस हिसाब से अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं या जो कर रहे हैं आपको स्वेटिंग ज्यादा आती है, इसीलिए रीएप्लिकेशन जरूरी है। ओके और वाकई में अभी तो मार्केट में इतनी तरह के सनस्क्रीन है, मेडिकेटेड सनस्क्रीन भी ऑलमोस्ट हर तरह के हैं। अगर आपको हल्का सा मेकअप चाहिए तो टिंटेड सनस्क्रीन है, अगर जैसा कि आपको स्विमिंग करना है तो वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है। तो बस जरूरत है कि हम सही सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। संयुक्ता, एक बात मैं बताना चाहूंगी, जैसे आपने बताया टिंटेड सनस्क्रीन है, समटाइम द पिगमेंटेशन इज सो डिफर एंड सो प्रोमिनेंट, और अगर उनकी स्किन टाइप लाइटर है तो वो कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा दिख जाता है। तो इसीलिए जो टिंटेड प्रोडक्ट है वो इस समय हेल्प करते हैं आपको उसको कैमोफ्लैज करने के लिए। सो व्हाट डज मेकअप डज, इट डज द फंक्शन ऑफ कैमोफ्लेजिंग ओनली। सो द सनस्क्रीन आल्सो इन सिमिलर वे हेल्प्स टू डू दैट। राइट। प्रेगनेंसी के दौरान भी मेलास्मा बहुत कॉमन होता है और इसको लेकर एक सवाल भी इतिशा कौशिक पूछ रही है। उनकी सिस्टर इस वक्त प्रेग्नेंट है और वो मेलास्मा से भी जूझ रही है। सो वो पूछ रही है व्हाई इज मेलास्मा सो कॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड हाउ टू डील विद इट। क्या है कि हमने पहले भी बहुत जो डिस्कस किया है कि हार्मोन्स है, प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स है बढ़ जाते हैं, तो इसी वजह से बेसिकली ये पिगमेंटेशन है जो बॉडी के चेंजेस है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस है कि प्रेगनेंसी है तो उसके साथ कुछ लोगों को निकलने ही वाला है, कुछ लोगों को नहीं निकलेगा। सो द अनलकी वंस गेट दिस यू नो अलोंग विद द बेबी दे गेट दिस मेलास्मा एंड कई बार अपने आप ठीक भी हो जाता है। जनरली यू नो द प्रेगनेंसी टाइप का प्लाज्मा है, हम उसे क्लोएस्मा भी बोलते हैं कभी कभी, एंड इट हैज अ स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन भी हो सकता है, बट द प्रॉब्लम इज देयर कुड बी अ रीअकरेंस, इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, यू नो द एरिया माइट इंक्रीज और इट माइट अकर फ्रॉम सम अदर साइड्स एंड ऑल। अच्छा, कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं खासकर स्किन से रिलेटेड, भले ही वो सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए हो, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा होता है इफ यू आर प्रेग्नेंट और यू आर लैक्टेटिंग प्लीज डू नॉट यूज दिस प्रोडक्ट। प्रेगनेंसी जो है एक तरीके की स्पेशल कंडीशन है, सो हम सनस्क्रीन छोड़ के और भी कोई चीज जनरली नहीं बोलते। इसीलिए मैं डॉक्टर पूछना चाह रही हूँ कि एक तो हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको मेलास्मा है तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करें, ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट ना लें, और ऐसे में अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसको मेलास्मा हो रहा है तो ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो ओवर द काउंटर मेडिकेशन बिल्कुल भी ना ले। तो उसको लेकर भी आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, ट्रीटमेंट जो है ना प्रेगनेंसी में हम जितनी मिनिमल और जितनी कम साइड इफेक्ट्स के साथ हम ये कर सकते कि जिस ड्रग से बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है या जिसके साथ ऐसे स्टडीज अवेलेबल नहीं है कि ऐसे प्रॉब्लम बेबी के साथ हो सकते हैं, जनरली नहीं होते, बट फिर भी हम कॉशियसली पेशेंट को ये बात बताते हैं कि वंस द बेबी इज आउट विल ट्रीट यू इंटेंसिवली, यू नो। क्या डॉक्टर कई बार लंबी बीमारी या बहुत लंबा मेडिकेशन चल रहा है, बहुत सारे ड्रग्स ले रहे हैं, उस वजह से भी मेलास्मा होता है? एज सच नहीं होता, बट ये है कि कुछ ड्रग है वो हमें फोटो सेंसिटिव बना सकते हैं।
फोटो सेंसिटिव बना सकते हैं, मतलब आपकी स्किन जो पिगमेंटेशन से हल्की डार्क होगी या नॉर्मल सन एक्सपोजर से, वो इन ड्रग्स के वजह से डबल या कुछ टाइम्स मोर डार्कर हो जाती है। तो इसीलिए आप जो भी मेडिकेशंस ले रहे हैं आपने जरूर बताना चाहिए कि मैं ये मेडिकेशन ले रहा हूँ तो शायद इसके वजह से मैंने, और कभी कभी आप खुद भी विजिलेंट रहे ना। पेशेंट also many times tell in the history कि I have noticed after when this drug has started my pigmentation has gone deeper. Right, exactly. Can melasma turns into cancer? ये भी कई लोगों को रहता है सवाल इस No, बारे में। not at all, not at all. It is just the skin which is darker, but there is no problem with that. ये कॉस्मेटिक तरीके की बीमारी है जो दिखने में अच्छी नहीं लगती। Exactly, मतलब this is not life threatening, right? Yeah, it is not at all life threatening. Even the skin is also normal. It's just producing more pigment. जो स्किन के दो परतें होती है, उसमें से जो एपिडर्मिस होता है उसमें कुछ सेल्स होती है जो स्किन का कलर पैदा करती है, जिसके वजह से हमारे बाल काले हैं, जिसके वजह से हम ब्रिटिश कलर के हैं या गोरे हैं, तो वो अपना काम ज्यादा कर रही है। In simple language, what we can say. Exactly. Priya Sharma हमारे साथ है, पूछ रही हैं, are there new treatments for melasma as new technologies are there? So in there, is there any advancement and treatment also? कुछ नया आया है melasma के लिए? बहुत सारी चीजें नई नई आई हैं जो मॉलिक्यूलर लेवल पे काम करती है। जो पहले क्या होता था, हम सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करते थे। अभी जैसे जैसे हम डिसीज के बारे में ज्यादा जानकारी हमें मिल रही है, उसके पैथोजेनेसिस के बारे में कि कौन से एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो हमारी ट्रीटमेंट और ज्यादा स्पेसिफाइड होती जा रही है कि हम उस मॉलिक्यूलर लेवल पे काम कर रहे हैं। There are many things which are there in the market, which are yet to come, which are there in the pipeline. And we hope we have a better solutions for all this in the future. Definitely. सानिया पंजियार पूछ रही हैं, उनकी स्किन ड्राई है और ड्राई स्किन के लिए डेली रूटीन स्किन केयर क्या होना चाहिए? सानिया जी, थैंक यू सवाल पूछने के लिए। देख, आपने आपके स्किन टाइप के हिसाब से बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। अभी वैसे भी सीजन ड्राई हो रहा है, इसलिए जो एक्ने प्रिन स्किन होती है या जिनकी ऑयली स्किन होती है उनकी भी स्किन ड्राई हो रही है। तो आपके लिए जरूर मैं आप यू कैन अवेल और ऑनलाइन और ऑफलाइन कंसल्टेशन। आई कैन डेफिनेटली प्रोवाइड अ कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन टू यू। थैंक यू। ओके। और एक सवाल जो जिन्हें melasma होता है वो हमेशा पूछते हैं, आई एम श्योर आपके पेशेंट्स भी आपसे पूछते होंगे, कैन melasma बी क्योर्ड परमानेंटली? सी अगर आप मैं हमेशा पेशेंट्स को पूछती हूँ, आप डायबिटीज या आपको बीपी हो जाता है तो आप डॉक्टर से पूछते हैं क्या कि मेरा बीपी ठीक हो जाएगा, मेरा डायबिटीज ठीक हो जाएगा? तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर हम ट्रीटमेंट ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपकी इंप्रूवमेंट कैसी होगी? तो दीज आर नॉट द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आंसर्ड एट द फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड क्योर इज ये कोई जैसे गारंटी या वारंटी वाली चीजें है नहीं। आपकी बॉडी है, मैं तो दवाई लिखनी है, आपकी बॉडी है, आपका सन एक्सपोजर है, आपकी लाइफस्टाइल है। So it all depends on the patient's, attitude more of towards the disease. What I generally do, I give a complete idea about the prognosis of the disease, and I do a lot of hand holding kind of thing. What we can say, the patient need, a understanding of the disease. Right. So when the understanding of the disease is there, their expectations are set accordingly. तो एक बार उसके साथ आप लाइन अप हो जाते हैं ना, देन आपके दिमाग में ऐसे सवाल नहीं आते कि ये मैजिकल नहीं हो सकता। देयर इज नो मैजिक। एग्जैक्टली। और इस तरह के जब हम सेशंस करते हैं जहां डॉक्टर अर्चना आप जैसे एक्सपर्ट होते हैं जो लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तो वाकई में उस लाइन पर आना, सेम पेज पर आना, वो थोड़ा आसान हो जाता है कि लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि अच्छा melasma भी कुछ ऐसे जगह पे पता है, इंडिया में ऐसे सेशंस की या ऐसे इनोवेटिव चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना जान रहे हैं और ऐसी चीजें ये कर रहे हैं। जैसे आप इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होते हैं, वैसे सही चीजें जान के उसके लिए एक स्टेप भी अहेड ये कर सकते हैं, Exactly. And Dr. Archana, before we wind up the whole session, any take-home message for our viewers? Yeah, definitely. We had a wonderful session. We discussed so many things about melasma. So I'll just have highlight points. melasma एक तरीके की हाइपरपिगमेंटेशन की बीमारी है
हार्मोन से, सन एक्सपोजर से, आपका ऑक्यूपेशन, आपके जेनेटिक फैक्टर्स, इन बहुत सारी चीजों से इसका इन्फ्लुएंस होता है। आपकी स्किन टाइप डिफरेंट हो सकती है, आपकी सेंसिटिविटी डिफरेंट हो सकती है, इसलिए सनस्क्रीन या कोई भी प्रोडक्ट आप जो चूज के, वो एक कस्टमाइज और पर्सनलाइज सोल्यूशन होना चाहिए। इसके लिए आपने एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। और डिफिकल्ट टू ट्रीट कंडीशन है, इजी टू डायग्नोज कंडीशन है, बट डिफिकल्ट टू ट्रीट कंडीशन है। तो ये एक लॉन्ग जर्नी है हाइपर पिगमेंटेशन को लाइटन करने की। इसके लिए आपने सही जगह पे दिखाना और सही तरीके से डायग्नोज करना और कस्टमाइज प्रोडक्ट जो आपको सूट करे। अगर आपको उससे परेशानी भी होती है ना, व्हेन यू गिव द फीडबैक टू द कंसर्न पर्सन, दे कम टू नो कि व्हाट एल्स कुड बी डन। You know, there is a lot of therapies are there. You know, even though it cannot be cured, it can make lighten. It can make a difference in overall, you know, your lifestyle and overall appearance. So a healthier, happier skin can put a smile on the face, I could say. Absolutely. It was wonderful hearing you, Dr. Archana. Thank you so very much for your valuable Same time. here, same here. I hope our viewers have enjoyed the session. Thank you very much for joining us. Have a good day and have a beautiful year ahead, 2023. Okay. Thank you. Wish you the very same, doctor. And it was I such hope an we meet informative soon. session. I'm really looking forward to have, many more such sessions with you in coming times Thank for our you. viewers. Thank you very much, Sayuta. You are an amazing host. I Thank hope our you. viewers have enjoyed the session. Thank I'm you. sure because we have so many questions, still viewers are pouring questions. So I'm sure they Yeah, also we enjoy have this another session. session for the questions also. I'm sure. Yes. Have And a good viewers, thank you for your active participation in today's session. Please stay connected to our beautiful Spotless Skin page. Thank you. Have a good day ahead. Goodbye. Bye.